Hello, friends. Now, today we would like to think about the most IMP part 6 current electricity. Part 5th, you know that very well. EMF, terminal voltage, and don't forget the most IMP point internal resistance. No doubt we discussed few numericals based on it in our part 5th. And at the end of this chapter, special version of these all numericals will cover, don't worry. But today you can see this is the most IMP. मैंने बोला था चैप्टर नंबर 3 अगर देखा जाए तो समंदर है, तो अब अपन लोग ये समंदर में गोता मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, यू नो दैट वेरी वेल, ऑफ रेजिस्टर्स, most IMP. This is the JEE NEET special, I can say, but along with JEE NEET we will also cover some NCERT questions. So JEE NEET plus NCERT solution, I can say. So series parallel, ये नाम से आप अब वाकिफ हो, you have idea about series parallel because of series combination of capacitors and parallel combination of capacitors. मैं वापस series और parallel capacitors को याद करता हूँ. So you know that very well, whenever you are dealing with capacitors and suppose 3 capacitors are connected in series, then what's the net capacitance? So you know that 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Whenever you are discussing about series combination, then few points are very IMP. Series, हो फिर कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो, डोंट वरी. For series combination, you know that charge and current remains constant. Number 2, potential is always distributed. Don't forget potential distributes. Number 3, net resistance or net capacitance. But these 2 points are very IMP or common for resistor as well as capacitor. So for parallel combination, what happens in parallel combination? In parallel combination, you know that very well, current is distributed while potential remains constant. तो ये दोनों कंसेप्ट अपन लोग अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले मैं सीरीज ये फॉर्मूले डिराइव करने का पूछ सकते हैं, और पूछे तो समझो मार्क्स मिल ही गए थियोरेटिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, you know that very well, resistors. Suppose this type of 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected with a battery of voltage V, you can see. So what is your target? Your target to find net resistance of these 3 resistors which are connected in series. So first of all you have to think about current. करंट यहाँ से निकलेगा, अपन लोग जानते हैं इसका नाम, ये करंट को अपन लोग भली भांति जानते हैं, जिसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट. तो कन्वेंशनल करंट यहाँ से निकला, देखो बिंदास गूगल पेन से, यू कैन सी दैट. और पॉइंट ए के पास आके रुक जाता है कि किधर जाऊं का एक ही रास्ता है इसके सामने, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो हियर करंट फ्लोज थ्रू दिस ईच एंड एवरी रेजिस्टर विदाउट एनी चेंज. That means the current passing through resistor R1, current passing through resistor R2 and current passing through resistor R3 remains same. That means the magnitude of current remain, you can see the same. So first point for series, you know that very well, current remains constant while potential is always distributed. So here distribution of potential, let the potential difference across first resistor is R1, across second resistor is R2 and across third resistor is V3, you can see that. So across R1 V1, across R2 V2 and across R3 V3. So potential V suppose 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. मैंने सीरीज हो या पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करने का एक जबरदस्त पॉइंट दिया है. Whatever the type of combination given, you have to start with, we can say that, distributed quantity. Here which quantity is distributed? Obviously potential. So we start with potential. So total potential V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now V1, what do you mean by V1? It is the potential difference across resistor R1. So you know that very well, whenever you are dealing with capacitor C, then charge is deposited and potential difference भी. देखते जाना बराबर.
and whenever you are dealing with resistor R, then current is passing through it and potential difference V. मैं दोनों को पैरेलल स्टडी शुरू करता हूँ थोड़ी देर के लिए. So here you know that capacitance is given by equation Q by V, and here resistance is given by formula V by I. You can see potential इसमें दोनों में कॉमन है, उसका पोजीशन अलग अलग, बाकी सब सेम. सो कैपेसिटेंस है, इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. नाउ आई वुड लाइक टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दैट मींस Q by C, you know that. So similarly, what is the potential difference across resistor? So V is equal to simply IR, you can see. So आज से कैपेसिटर का पीडी अपन लोग जानते Q by C, ये हमने लूप रूल पे अप्लाई किया था. इसी तरह इधर भी अपन लोग लूप रूल अप्लाई करेंगे, इसका स्पेशल लेक्चर है. सो whatever the PD across resistor, that means current passing through resistor multiply by resistance of that resistor. ये अपन लोग आज डिटेल स्टडी करने वाले, ये आज का हीरो है, डोंट वरी. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1? मैं R1 का डायग्राम एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो R1. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V1 and what is the current passing through R1? It is IR, total current remains same. So V is equal to IR. So potential difference across R1 मतलब आपको इतना बोलना है, potential difference across R1, that means current passing through R1 multiply by resistance of R1. So that means resistance of R1, resistor is R1. So formula बनेगा IR1. Similarly V2, so it becomes IR2. You know that now. V3 is the potential difference across R3. So what is the current passing through R3? It is I. And what is the resistance? Obviously R3. So total potential V is equal to V1. It is IR1. V2 it is IR2. V3 it is IR3. So V is equal to I common. So R1 plus R2 plus R3. So we can write V by I, धीरे से I इधर. So R1 plus R2 plus R3. यहाँ तक किसी को डाउट, you can see. But V, what do you mean by V? V is nothing but it is the total potential of the circuit. What do you mean by I? It is the total current of the circuit. So total potential upon total current. Now if you consider the net resistance of these three resistors which are connected in series, let the net resistance of these three resistors which are connected in series is R. We will write if net resistance of a given combination is suppose R net. So we can write R net is equal to total resistance. What do you mean by total resistance? Total resistance as per Ohm's law. Total resistance is equal to total potential upon total current. So V upon I is equal to R net. So V by R is equal to R net. So R net is equal to simply R1 plus R2 plus R3. You can see this is the formula of net resistance for the resistors which are connected in series. If this type of n number of resistors are connected in series, then what's the net resistance? It is R1 plus R2 up to Rn. So just you can see that opposite of capacitor. In the case of capacitor, if you think about the series combination of capacitors, then what happens? The net capacitance can be found by using formula reciprocal or inverse addition. 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. But here, in the case of resistor, the net resistance can be found very easily by taking simple addition R1 plus R2 plus R3. इसीलिए अब होने वाला है मिक्स भजिया. कैपेसिटर्स और रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स होने के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स है वो एप्लीकेशन में गलती कर देते हैं. सो बी अलर्ट. आप रजिस्टर के साथ डील कर रहे हो तब आपको रेजिस्टेंस के फंडे पता होने चाहिए. कुछ बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक ही चीज़ याद रखने की, या तो कैपेसिटर्स का याद रखो या रजिस्टर का. सपोज कैपेसिटर्स का याद रखो तो उसके ऊपर से याद रखने का जो कैपेसिटर में अप्लाई करे उससे उल्टा अप्लाई करना है रजिस्टर में. तो अपन लोग सीरीज में अप्लाई कर रहे थे 1 अपॉन सी, तो वो इनवर्स एडिशन कब अप्लाई करेंगे? पैरेलल में. कहाँ? रजिस्टर में. अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि रजिस्टर में R1 प्लस R2 प्लस R3 लाए
यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कब अप्लाई करते थे? पैरेलल में. ओके, इट इज वेरी इजी, डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो ही जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मगर ये पूछने के चांसेस ठीक ठाक. सो नेट रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड 8, 9, 10 यू हैव आइडिया अबाउट इट, मगर फिर भी हमने डिस्कस किया. बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर, दैट मींस द करंट पासिंग थ्रू दैट रेजिस्टर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर. तो अपन लोग सीरीज के लिए डिस्कशन करें तो कौन से 4 पॉइंट्स याद रखने के? नंबर 1, in the case of series combination, number 1, current remains constant. Number 2, you know that very well, potential is distributed. Number 3, this type of combination is very useful to obtain maximum resistance. देखो कैपेसिटेंस से उल्टा, क्योंकि ये डायरेक्ट एडिशन से, सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाना हो तो सीरीज को याद करो. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn. तो ये 4 पॉइंट्स याद किए. अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3. These 3 resistors are connected in parallel with, we can say, that battery of voltage V. Obviously we would like to find net resistance of these 3 resistors which are connected in parallel. So यहाँ से करंट निकला, देखो गॉगल्स पेन से निकलेगा और यहाँ आके करंट रुक जाएगा. करंट कंफ्यूज हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब समझ लो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब पैरेलल अपन लोग जानते हैं. So these 3 resistors are connected, and that's why current is distributed for each and every resistor. Let current passing through first resistor is I1, for second is I2, and for third is I3. But you know that very well, for parallel combination potential remains same. That means PD across R3, PD across R2, or potential difference across R1 remains same, it is V. So we start with, we can say that first of all 2 points. Here current is distributed for parallel combination, current is distributed, but you know that very well, potential remain constant. अपन को कोई भी थियरी में रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने बोला है आपको डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी से शुरू करना है. सो टोटल करंट I is equal to simply I1 plus I2 plus I3. Current I distributed, you can see that among 3 different resistor I1, I2, I3. चलो रुक जाते हैं. अब I1 का मतलब क्या? What do you mean by I1? I1, that means current passing through first resistor. So what is the general formula of current? Ohm's law याद रखना इधर. R is equal to V by I. So I is equal to V by R1. So I can write V by R1, not V1 by R1. Why? V1 by R1 is not possible because here potential remains constant. इसके भी V होगा, V होगा, V होगा. So V by R1. Similarly I2 क्या होगा? V by R2. And similarly I3 होगा V by R3. So I is equal to I1, it is V by R1, then I2 V by R2, then V by R3. So V already common. So 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So I by V is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. You can see. यहाँ तक किसी को डाउट? Now 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon R3. But what do you mean by I? It is total current. And what do you mean by V? It is total potential. So if the net resistance of these 3 resistors is R net, so what is the resistance? Total resistance is equal to total potential upon total current. मगर इधर तो I by V है. So obviously 1 upon R net is equal to I by V. So instead of I by V, we can put R net, but 1 upon R net. So it is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So once again we have started this theory with distributed quantity like current, you can see. And this is the formula. देखो उससे उल्टा कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला रेजिस्टर में पैरेलल जैसा बना है, और कैपेसिटेंस का पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टर के लिए सीरीज जैसा बना. So friends, whenever you are dealing with parallel combination, then don't forget this is the formula. Few points about parallel. Number 1, current is distributed. Number 2, potential remains constant. Number 3, this combination is useful or applied
whenever you would like to obtain minimum resistance in the circuit, सर्किट में हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तब ये कनेक्शन लेंगे। और फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो ये हमने डिस्कस किया। अब थोड़े इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अपन लोग नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उसके बाद अपन लोग इसको करंट में इंक्लूड करेंगे और फिर धीरे धीरे बेहतरीन पॉइंट। मैंने ये लेक्चर पार्ट 6 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि अच्छी तरह अपन लोग प्रैक्टिस कर सके, वो पूरा लेंथ ना है इसलिए। सो पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट, इस तरह अपन लोग 40 मिनट्स के मुताबिक जाएंगे और मजा आए तो सपोज पूरा डिस्कशन करेंगे, डिपेंड्स। सो नाउ वी रिमूव दिस पोर्शन, यू कैन सी। सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज this type of 3 resistors are given, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. 3 resistors are given and 12 volt battery is connected with this 3 resistor. चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ए ना है मतलब लोचे, नेट रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस आर नेट, दिस इज योर R1, R2, R3. So find out net resistance. It is obviously directly I can write 1 + 2 + 3 because series then direct addition. So a net resistance 6 ohm. चलो अब दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 यानी 1 ohm resistor. It is suppose total potential V. So here V1, here V2 and V3 is the potential difference across third resistor. चलो ट्राई करो फॉर्मूला अप्लाई करके। What is the potential difference across R1? So you know that PD that means V1. अब अपना इतना याद रखना है, PD पूछे, PD across any resistor that means current passing through that resistor multiplied by resistance of that resistor. So what is the current passing through R1? R1 में से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। सो टोटल करंट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है V/R, सिंपली टोटल करंट V/R। ओके, दैट मींस Ohm's law, V here 12 volt and what is the net resistance 6. So total current 2 ampere. So अपन लोग जानते हैं PD across R1 that means current passing through R1 multiplied by resistance. So current passing through R1 now 2 ampere and what is the resistance 1 ohm. So answer आएगा 2 volt. Now similarly I would like to find V2 potential difference across 2 ohm resistor. So once again current passing through 2 ohm. What is the current passing through 2 ohm? Obviously I need 2 ampere. What is the resistance 2 ohm? So 2 2 ja 4 volt. And what is the potential difference across 3 ohm resistor? तो 3 ohm का जो resistor उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? Obviously 2 ampere और उसका resistance है 3. So 2 3 ja 6 volt. ये तीनों का एडिशन देखो, obviously 12 volt. तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस इज योर टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन एंड दिस इज टेक्स्ट बुक 3.3 अनसोल्ड नंबर 3.3, जस्ट चेक इट। तो इसके जैसा एक मैं और दे रहा हूँ, मगर ट्राई करने की है थोड़ी अलग तरीके से। पता चला पीडी फाइंड करने का पूछे तो इस तरह, और आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो लोग पीडी पूछेंगे क्योंकि पीडी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि पैरेलल में आपको पता है क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट। तो पैरेलल में करंट पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 3 रेजिस्टर and this 3 resistor is already connected with a battery of 10 volt. Okay, here 20 volt, sorry, and 2 ohm resistor, 4 ohm and 5 ohm. These 3 resistors are connected in parallel. चलो आपका क्वेश्चन है, फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। स्टार्ट।
Okay, what is the answer? Particularly we would like to find current passing through these three resistor 2, 4 and 5. यहाँ से current निकला देखो. And at this point a current distributed into three different parts, I1, I2, I3. You can see I1, I2, I3. Okay, what is the current passing through this 2 ohm resistor? Current passing through 2 ohm resistor is I1. Find out I1. Obviously we would like to find I1. So current passing through first resistor 2 ohm. तो चलो I1 का मतलब है as per Ohm's law V by R1. What is the V? It is 20 volt. You can see that. So here 20 upon, what is the, we can say the resistance 2. So it is 10 volt, sorry, ampere. So I1 होगा 10 ampere. Now what is the I2? Current passing through 4 ohm resistor. So I2 is equal to V upon R2. Potential difference upon resistance. Potential difference तो 20 रहेगा because parallel, then potential remains same upon resistance 4 ohm. So it becomes 5 ampere. And now we would like to find I3. So it is V by R3. So 20 by 5. Then it is 4 ampere. So total current आएगा I1 plus I2 plus I3 is equal to simply 10 plus 5 plus 4 यानी 19 एम्पियर. ये हमने टोटल भी फाइंड कर लिया. टोटल आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो. टोटल करंट का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं. टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. So what is the total potential of the circuit? It is 20 volt. What is the total resistor? These three resistors are connected in which way? Obviously in parallel. So in parallel, how can you find net resistance? R net is equal to 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 5. याद करो, ये कैपेसिटर्स नहीं है कि पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन. ये थोड़ा चिकना के संभल के. सो इसका एलसीएम अपन लोग लेंगे. जिसे कह सकते हैं कि 40. सो इधर जिसे कह सकते हैं कि 2. तो ऑब्वियसली 40 लाने के लिए 20, इधर 10 और इधर 8. सो 38 डिवाइड बाय 40 नेट रेजिस्टेंस. देखो मगर गुलाटी मारो, गुलाटी पैरेलल में भूलनी नहीं है. सो 40 अपॉन 38 हो जाए. अब अपन लोग ये वैल्यू इधर रख दे. टोटल रेजिस्टेंस आया 40 अपॉन 38. सो इट कैन बी रिटन लाइक 20 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 40. सो 19 एम्पियर यू कैन सी. तो ये भी मेथोडोलॉजी, ये भी है. एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये बोर्ड के लिए. ऐसे क्वेश्चन है. सो दिस इज योर अनसोल्ड नंबर 3.4 एनसीईआरटी. मैंने बोला आज अपन लोग दोनों केसेस देखने वाले हैं. जेडब्ल्यू नीट प्लस एनसीईआरटी मिक्स है क्योंकि ये लेक्चर मोस्ट टाइम थी. सो दिस इज योर 3.4. अब अपन लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है. मगर उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको ट्राई करनी है. ये देखो, मैं जब ऐसे क्वेश्चन देता हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जो बहुत ही हाई फाई सोचते हैं कि ऐसा थोड़ा पूछेंगे, ये थोड़ा जेडब्ल्यू. मैंने कितनी बार बोला जेडब्ल्यू का रास्ता लोअर लेवल से शुरू होके हायर लेवल पे जाता है. इसलिए आप जो वीडियोस देखते हो या जो भी बुक्स रिफर कर रहे हो बराबर एक्स्ट्रा, तो उसमें हाई फाई आया तो इसका मत समझो, ऐसा मतलब मत निकालो कि ऐसा नहीं. सबसे पहले ऐसे से आगे बढ़े जाएंगे और ऐसा सिचुएशन ही सबसे ज़्यादा आपको होम लेवल पे ले जाएंगे. सो ये क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ ट्राई करने की है. आपको सिंपल है. फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट. चलो यहाँ से करंट निकला. देखो टोटल करंट फाइंड करने का है. करंट फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वापस आ जाएगा. फाइंड आउट योरसेल्फ.
what is the total current of the circuit? Okay, so you can see first of all total current I is equal to total potential upon total resistance. मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से I इज इक्वल टू V बाई आर. V आपके पास है. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? तो देखो यहाँ से करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, मगर ये करंट यहाँ तक तो कांस्टेंट ही रहता है. सो दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज हो तो डायरेक्ट एडिशन 30 30 60. सो ये 30 इस तरह होगा और ये दूसरा रजिस्टर आया 60. देखो इसका, मगर ये दोनों यहाँ से करंट एंट्री लेता है और यहाँ से करंट बाहर आता है, तो ये दोनों किस तरह कनेक्ट है? पैरेलल. सो नेट रेजिस्टेंस दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 60, 30 प्लस 60. याद करो दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसका नेट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो 30 इंटू 60, ओके, multiply by divide by 90, so ये cancel, so 3 3 जा 9, 3 2 जा, so answer आएगा 20 ohm. So what is the V? V already 2 volt, and what is the R? 20, so answer आएगा 0.1 ampere. This is your answer. तो ये नेट करंट, टोटल करंट जब पूछे तब आपको पोटेंशियल दे देंगे, आपको ऑलवेज रेजिस्टेंस फाइंड करने का जिम्मा आएगा, ये भूलना मत. तो ऐसे क्वेश्चन में खास याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो अपन लोग अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने जाए उससे पहले, ठीक है, सोल्व कर लेते मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाद में वापस कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है. सो ये अपन लोग लिख देते हैं 2021 फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. This type of two resistors 4 ohm 4 ohm are connected, and then there is a resistor of 1 ohm, and then there is resistor of 12 ohm and resistor of 6 ohm, like this one. And this entire point is connected with a battery of 16 volt, but there is internal resistance. This is internal resistance R of 1 ohm. ये पूरा पैकेज है. अब जानते हैं ना, कल हमने डिस्कस किया इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ ही होता है. ये रहा पूरा पैकेज. रेडी. सो व्हाट इज योर टारगेट? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. बहुत ही चिकना केस, मोस्ट टाइम पे फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस of given network or circuit. Start. चलो apply your logic. Okay, very easy. So first of all, what is the net resistance? So these two resistors are connected in which way? Obviously in parallel. So 4 4 2 ohm. देखा? कोई बोले सर कैसे? Because they both are in parallel. Series का concept, two resistors are connected in parallel and having same resistance. 3 का तिकड़ा में याद रखो, 2 parallel मगर resistor में और equal value then half. So 4 4. ऐसा याद ना रहे उसको क्या करना है, तो वो इधर ऐसा एक कंसेप्ट अप्लाई कर दे, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो इसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम, ये तो 1 ओम है. नाउ दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन विच वे? दे बोथ आर इन पैरेलल. सो इसका नेट रेजिस्टेंस होगा 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, सो 12 इंटू 6 अपॉन 18. तो 6 3 जा, 3 4 जा, सो 4 ओम. So if you draw diagram, so what is the net resistance of this first loop? It is 4 ohm. Then there is 1 ohm. Here are 1 ohm. And then there is, you can see that again 4 ohm. This is your point A. Point A. There is point B. There is point C. And there is point D. So A, B, C, and D. Okay. What is the, we can say that net resistance of the given network. तो काफी लोग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन पूछने के चांस इसलिए ज्यादा है
क्योंकि ये आपका बेसिक बिल्डिंग बनने जा रहा है, ये बेस है। अगर बेस ही रॉन्ग हुआ, ये लोग ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछेंगे ताकि आप गलतियां बेशुमार करो और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आओ, मगर जब रिजल्ट आए तब यही कॉन्फिडेंस हवा हवा हो जाए। रीजन देखो क्या चिकना कैसे ऐसा पूछा, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो काफी स्टूडेंट्स इसका 2, 1, 4 और उसके बाद ये 1 ओम रजिस्टर भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 1 ओम रजिस्टर है उसको भी नेटवर्क का रजिस्टर समझते हैं। डोंट कंसीडर, यू कैन सी दैट 1 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट, it is the resistance of, you can see that battery. So most IMP, तो अपन लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें, कल का मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, चेक इट। दिस इज द EMF, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड दिस एंटायर पोर्शन रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। So resistance बनेगा 4 plus 1 plus 4. Why? Because they all are connected in series. Sorry, there is a 2. So 2 plus 1. So 2 plus 1 plus 4, that means 7 ohm. तो पहला question cover up. What is the net resistance of the, we can say that, network or resistance of the circuit. ऐसा बोला हो total, ये resistance of the circuit पूछा है, entire जिसे कह सकते, even पूरी सर्किट को कवर करना हो यानी बैटरी के साथ, तो रेजिस्टेंस होगा 8 ओम। क्योंकि जब करंट फाइंड करेंगे, सपोज इसका करंट फाइंड करना हो, सो करंट का फॉर्मूला चेक करो, R प्लस स्मॉल r, सो एप्सिलॉन है इधर 16 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट, सो इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हियर 7 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू कंसीडर 1 ओम, सो 16 अपॉन 8, सो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू सर्किट, इट इज 2 एम्पियर। देखो यहाँ से करंट निकलेगा 2 एम्पियर, ये निकला। सो व्हाट इज द करंट, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू सर्किट और करंट ऑफ द नेटवर्क, मोस्ट IMP। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, देन BC, देन CD। चलो इधर इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ किया, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, देन BC, देन CD। नो प्रॉब्लम, कितनी बार अपन लोग ने डिस्कस किया, whenever you would like to find potential difference, what is the basic point, इतना याद रखो always। so देखो, first of all we would like to find potential difference across AB point, ये दोनों पॉइंट्स, इधर ये दोनों पॉइंट्स देखो इधर, तो बिंदास फॉर्मूला फेंको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, that means VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, that means VAB। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो भी दो पॉइंट्स पूछे उसका जनरल फॉर्मूला इतना, करंट पासिंग थ्रू AB रीजन, करंट पासिंग थ्रू AB मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ AB ब्रांच और AB पार्ट। बस potential difference across any 2 points, that means current passing through these 2 points, and what is the resistance across these 2 points, what is the current passing through AB branch, ये ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है, तो जितना ये निकला देखो 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर ही पास होगा। कोई बोले सर इधर तो, अरे भले डिस्ट्रीब्यूट हो के तो वापस तो आएगा 2 एम्पियर, इधर देखो ये 2 एम्पियर। सो करंट पासिंग थ्रू AB branch 2 एम्पियर, सो आई कैन राइट 2 here। what is the resistance of AB branch, you can see between these 2 points AB there are 2 resistors, and these 2 resistors are connected in which way, obviously in parallel। so आंसर होगा इसका 2 ओम, हम जानते हैं ये इधर तो है ही हमारे पास, ये तो अपन लोग इधर डिस्कस करें। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB 2 ओम, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, इट इज 4 वोल्ट। चलो मैं अपने आप आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, व्हाट इज द PD अक्रॉस BC, स्टार्ट, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का PD फाइंड करो, स्टार्ट। व्हाट इज द PD अक्रॉस BC। चलो BC के लिए मैंने वापस बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, दैट मींस करंट पासिंग थ्रू BC ब्रांच, करंट पासिंग थ्रू BC branch multiplied by resistance of BC branch। so what is the current passing through BC branch, obviously it is 2 ampere। देखो ये सड़सड़ाहट ऐसे जाएगा, so resistance
की बात करें अब, so what is the resistance across BC branch? So resistance between B and C only 2 ohms, so multiply by 2. So potential difference between B and C point, it is 4 volt. देखो चलो एक और, what is the PD across CD branch? So now we'll think about the one more, PD across CD. So we'll remove this portion now. So next point, what is the potential difference between CD points? चलो ये रहा C और AD, it is VCD. Once again potential difference between two points, ये दोनों points के बीच का PD फाइंड करना हो तो ये दोनों points में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट तो यही होगा 2 एम्पियर. कोई बोले कैसे, ये देखो इधर डिस्ट्रीब्यूट होके भी वापस तो डी के पास वही पहुंच रहा है. सो करंट है 2 एम्पियर, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बिटवीन C and D. व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन C and D? Obviously it is 4 ohm, we have already calculated. So answer आएगा 8 volt, you can see. So obviously 8 volt, then here 4 volt and 4 volt. So total PD distributed, you can see 4 plus 4 plus 8, that means 16 volt. देखा ये 16 वोल्ट जो आंसर आ रहा है वो भी हमें एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रहा है. व्हाट इज द पीडी अक्रॉस दिस ब्रांच? दिस इज 4, दिस वन इज 4 एंड हियर 8. यानी जो 16 वोल्ट है वो ये 3 रेजिस्टिव ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि रेजिस्टर तो इधर भी था मगर ये रेजिस्टर सर्किट का रेजिस्टर नहीं है. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी, और आई कैन से materials, chemical materials of the battery, that's why it is called internal resistance. So don't count this resistor as a part of circuit, don't forget. That's why whenever we calculated the net resistance of the circuit, then we considered only resistance of these branches, you can see. So most time की point, अभी इसमें दम है, अभी जो क्वेश्चन है वो तो मोस्ट टाइम भी है, तो इसलिए मैंने इसके 4 मार्क्स कहा है. ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सोल्व करो मतलब आपके ज्यादातर फंडे क्लियर. अब अपन लोग हर एक रजिस्टर में से कितना करंट पास होगा वो हमें फाइंड करना है. सो नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर. हमें टोटल करंट पता चल गया है. व्हाट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट? 2 एम्पियर. तो देखो पहला ब्रांच, मैं इधर फर्स्ट ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूं. यू कैन सी दिस आर द 2 रजिस्टर, 4 ohm and 4 ohm. एंड व्हाट इज द टोटल करंट अवेलेबल? इट इज 2 एम्पियर. ये रहा आपका आई. अगर करंट यहाँ से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मगर आप भी जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो तब रजिस्टर को एक बार चेक कर लो. ये 2 रजिस्टर, बट चेक द रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 रजिस्टर्स इक्वल. रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रिटार्ड करना है. तो मगर दोनों ब्रांच, ए ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम है, ए ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब दोनों ब्रांच है वो 4 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करती है. मतलब करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा. तो डायरेक्ट अपन लोग लिख सकते हैं ये ब्रांच में से 1 एम्पियर करंट और लोअर ब्रांच में से भी 1 एम्पियर. कोई बोले आप बोर्ड में पूछेंगे तो थोड़ा आप इस तरह बोल के बताओगे, तो इसको सोल्व करना सिखाता हूँ. देखो ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट. टेल मी दिस 2 रजिस्टर, सपोज दिस इज R1 and this is R2. Tell me these 2 resistors are connected in which way? Obviously they both are connected in parallel. Now tell me, for parallel combination which quantity remains constant? Obviously potential. तो potential across R1 and potential across R2 सेम ही होगा. तो अपन लोग शुरू करें. potential difference VR1 is equal to potential difference across R2. दोनों पैरेलल है तो PD सेम रहेगा. What is the general formula of potential? Potential का general formula है current multiply by resistance. So what is the current passing through this upper branch? Let the current passing through upper branch it is I1, and let the current passing through lower branch is I2. So upper branch का जो PD होगा वो क्या होगा? Current multiply by resistance. So I1 into R1. So what is the potential difference across lower branch? तो उसमें से कितना करंट पास होता है? R2, उसका रेजिस्टेंस R2. So I2 into R2. So I1 R1 1 है, देखो सॉरी 4, I2 R2 भी 4 है, तो 4 कैंसिल बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2. मगर अब चेक करो इधर I इज इक्वल टू क्या है? देखो I1 प्लस I2 और नॉट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. तो अपन लोग I2 की जगह क्या लिख सकते हैं? इट इज I माइनस I1. तो मैं लिखता हूँ I1 का I1, बट I2 इज इक्वल टू I माइनस I1.
तो I1 इस साइड आए, so you know that very well it is 2I1 is equal to I, but I already with us, it is 2 ampere you can see. So what is the value of I1? It is 1 ampere. So what is the value of I2? तो I2 मतलब I minus I1 यानी 2 minus 1 यानी it is also 1 ampere. ये हमने कैलकुलेशन थ्रू काउंट किया. इसका एक और मेथड है, वो जबरदस्त है, वो अपन लोग शॉर्टकट डिस्कस करने वाले, इसलिए मैं इधर जो बॉक्स बना रहा हूँ उसको JEE नीट के लिए लेना है. मोस्ट IMP ये अच्छी तरह जिसे कह सकते हैं डिस्कस करना है आपको. रेडी, once again you can see this is JEE NEET shortcut, very IMP. I will write here current distribution for resistors. I can write two resistors connected in parallel. पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते, देखो इधर दिस इज R1 R2. व्हाट इज द टोटल करंट I, और इसमें से जाएगा I1, इसमें से I2. चलो तो I1 फाइंड करना हो तो सीधा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ये IR2 अपॉन R1 प्लस R2, और अगर I2 फाइंड करना हो तो सीधा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे A, मोस्ट IMP. बट इन विच सर्कमस्टेंसेस दिस टू शॉर्टकट्स आर अप्लाइड? व्हेनेवर टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मोस्ट IMP ये अप्लाई अपन लोग बाद में करते हैं. अब अपन लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड करंट पासिंग थ्रू दिस टू रेजिस्टर. व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 4 ohm resistor? It is 1 ampere. And what is the current passing through lower 4 ohm resistor? It is also 1 ampere. तो देखो I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आया. अब ये 2 ohm में से कितना करंट पास होगा? ऑब्वियसली वो तो सेम ही रहेगा. सो करंट पासिंग थ्रू 2 ohm resistor it is 2 ampere. अब देखो ये ब्रांच को मैं इधर वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये रहा C पॉइंट, ये रहा C. करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर. और यहाँ से दो रास्ते प्यार के, यू कैन सी, ये अपर ब्रांच और ये लोअर ब्रांच. देखते रहना, ये आपका 12 ओम, ये आपका 6 ओम. चलो इसमें करंट फाइंड करना है तो अपन लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, टोटल करंट I, एंड अपर ब्रांच करंट I1, लोअर ब्रांच करंट I2. तो चलो I1 फाइंड करना हो तो ये शॉर्टकट अप्लाई करें, IR2 अपॉन R1 प्लस R2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? I is the total current 2 ampere. What is the value of R2? R2 already 6 upon R1 plus R2. R1 12 plus R2 6. So 6 to the 12 and 12 plus 6 18. So what is the I1? It is 12 by 18. That means 2 by 3 ampere. इतना आंसर आएगा I1. इसी तरह अगर अपने को I2 फाइंड करना हो तो I2 यानी ये शॉर्टकट I into R1. I already with us. What is the value of I? It is 2 ampere. R1, what is the value of R1? R1 12. So 12 into 2 upon R1 plus R2, that means 12 plus 6. So 24 divided by 18. So it is simply 4 by 3. You can see. अगर ये दोनों का टोटल करो तो क्या होता है? देखो 2 by 3 plus 4 by 3 यानी 6 by 3 यानी 2 एम्पियर आ गया. So total 2 एम्पियर. So most IMP. तो ये शॉर्टकट थ्रू भी आप लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो. ये बहुत ही IMP है, फ्यूचर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. सो बी अलर्ट अबाउट इट. मोस्ट IMP, सो वेरी IMP. सो वी कंसीडर दिस पॉइंट. रेडी? सो डोंट फॉरगेट. ओके, तो ये रेड कलर से सिंबलाइज कर देते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी हैव डिस्कस, और ये आपका एक बेहतरीन इलास्ट्रेशन है. दिस इज योर इलास्ट्रेशन नंबर 3.4, मोस्ट IMP. इफ यू थिंक अबाउट टेक्स्ट बुक इलास्ट्रेशन, देन दिस इज 3.4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड नेट रेजिस्टेंस, देन वी हैव फाउंड PD across. You can see that each branch PD across AB, PD across BC, PD across CD. मगर नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने में बहुत ही ध्यान रखना है. रेजिस्टेंस सर्किट का पूछे मतलब यही सर्किट होगी, ये रेजिस्टेंस को इंक्लूड ना करो वरना लोचे हो जाएंगे. पहला आंसर इज रॉन्ग होगा, बाद में वो लोग चेक करे ना करे किसको पता, इसलिए बी अलर्ट. अब जब टोटल करंट फाइंड करना हो तब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों लेंगे, और हमने 2 एम्पियर फाइंड किया था. फिर हमने हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास होता है वो फाइंड किया. करंट फाइंड करने का फंडा देखो, मैंने 2 मेथड बताई. पहले ये लूप के लिए हमने
दोनों रजिस्टर पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई किया। अगर ये सेट ना हो तो ये सीधा शॉर्टकट अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। मस्त न्यूमेरिकल पूछने के पूरे चांसेस, डोंट फॉरगेट दिस इज, यू कैन सी दैट 3.5 देयर इज, यू कैन सी देयर इज अ मिस्टेक। ओके, तो जरा एक बार चेक कर लेना। दिस इज द मोस्ट टाइमली पॉइंट। yes, this is your, you can see that illustration number 3.5। तो जिसके पास टेक्स्ट बुक ना वो भी इधर डेटा है ही, so just consider it and just try to revise it। so friends, we have discussed first part। अब अपन लोग यही कहानी को आगे बढ़ाएंगे मगर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जेडबलई नीट के क्वेश्चन सोल्व करते हुए आज अपन लोग इसमें रहना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये चैप्टर समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट जोन में एंट्री ले चुका है। ये खजाना है, आप चाहो इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसलिए अपन लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ असाइनमेंट थ्रू सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट में आज ही अपलोड करने वाला हूँ जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा physicsbygopalsir.com में, तो आपको वो देख लेना है। सो फ्रेंड्स, विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, within we can say the fraction of second you have to start the second part B। Thanks।